So the file name is bagging.ipynb. All right. So I'm not going to change the data. Data should be same. Like I will show you bagging classifier model training on Iris dataset. So the important libraries I'm going to mention, like what kind of library we require to perform this task first. So let's see. And library. So the first one is I require import numpy as np, then import pandas as pd, import matplotlib.pyplot as plt. Why it is showing me this underline? क्या है ये? Let me run this. It is working. कर्नल पाइथन नहीं आया था, इस वजह से दिक्कत हो गई थी। एनीवेज, तो मैटप्लॉटलिब हो गया। फिर उसके बाद import cborn as sn, and from sklearn.ensemble import bagging classifier. All right. So these are the important libraries would require to train my model on bagging classifier. So let's see. I'm going to load the data first. Import सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। I'm just going to teach you about the algorithm की working समझाऊंगा, but remaining thing are same, ठीक है। मॉडल ट्रेन करो, स्प्लिट करो, स्केल करो, प्रिडिक्शन मार्क होगा तो फिर से ट्रांसफॉर्म करो, यानी कि स्केल करो। तो ये सब चीजें सब एल्गोरिथम में कॉमन, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इन सबको मैं बार बार नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग, है ना। सो pd.read_csv, I'm going to load iris dataset and that iris dataset is here. किसी को समझ में नहीं आएगा देन प्लीज आस्क मी, है ना। मुझे आप लोग का शकल नहीं दिखाई देता तो आई डोंट नो कि आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। एंड दिस इज माय data set where I have like 150 rows and like 150 samples and 5 columns. I already taught you about this data set many times, so I'm not going to re-explain this kind of information. I'm going to simply split this data in training and testing part. So first going to split it into training, like I need these 4 columns data set into training part, sorry, feature part. So df.ilog, I need all the rows and that's why I mentioned column there. Okay. And then I didn't require the last one, the last column. That's why I mentioned -1, means from 0 to -1. Okay. Such kind of indexing I'm mentioning here. अगर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, that means यहाँ पे 0 होगा। 0 से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और मुझे -1 नहीं चाहिए, मतलब -1 तक पहुंचना है, ठीक है। तो -1 को छोड़ देता है हमारा स्लाइसिंग। एंड if you will run this and print the value of x, you will get 4 columns, but this is not in the form of feature, means in 2D array, because feature always exists in 2D array. So to convert this in 2D array, I have to like mention here dot values, and it will help me to get the data, the whole data, 150 rows into 2D array. All right. So हमारा जो फीचर है वो प्रिपेयर है। टारगेट को हमें बुलाना है। सो टारगेट इज y, means I'm going to store the target in y variable, df dot iloc I will mention here, and I require all the rows again, and I need only last column, but in 1D array, and that's why I'm not putting here column and some sort of things, okay। इसीलिए मैं यहाँ पे कॉलम नहीं रखता हूँ कि मुझे 1D array में चाहिए। अगर मैं कॉलम रख दूंगा तो वो 2D array में कन्वर्ट होगा जब मैं वैल्यूज लगाऊंगा तब, ठीक है। तो डॉट वैल्यूज, and you're gonna see this. See, this is your
टारगेट। ओके, अब जो कल टेक्निक मैंने बताया था, बैगिंग ऑल्सो यूज बूटस्ट्रैप टेक्निक, और बैगिंग के अंदर भी वीक मॉडल्स होते हैं, क्योंकि ये इंसेंबल लर्निंग का पार्ट है। इंसेंबल लर्निंग के अंदर जितने भी आप एल्गोरिदम पढ़ने वाले हो, वो इंटरनली वीक मॉडल की मदद से अपने प्रिडिक्शन को एग्जीक्यूट करती हैं, बताती हैं। ठीक है, मतलब वहां पे छोटे छोटे वीक मॉडल्स होंगे एक बड़े मॉडल के अंदर। ठीक है, तो जो हम इंसेंबल लर्निंग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें बैगिंग, हम बैगिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, बैगिंग क्लासिफायर के बारे में, जैसा नाम इसका मेंशन, ये क्लासिफिकेशन के लिए, एंड दैट्स व्हाई आई load iris dataset because it has three class in species column. So let's run. अब मैं इस डेटा को दो पार्ट में तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों निकालना है, जस्ट टू चेक बायस एंड वेरिएंस। तो मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा सेट को तोड़ना पड़ता है, और मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। सो फ्रॉम एसके लर्न, I guess pre-processing or model selection, I don't know. I forget about it. Train, test, split. No, this is not there in pre-processing. I guess model selection में है, import train, test, split. Okay. तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है हमारा, वो मॉडल सिलेक्शन के अंदर है। ओके, सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x और y I'm going to put there, and I don't want to get my data altered every time. That's why I'm going to mention here random state, which is 42. Okay. If you want to mention, you can mention training size or testing size also. Okay. If you are not going to mention training or testing size, that means training will be equal to 70% of overall data. जितना तुम्हारा डेटा उसका 70% होगा ट्रेनिंग। ठीक है, so for my confirmation, I'm just going to mention like a training size is 0.70, but if you are not mentioning this, that's also fine, या 70% ही होता है डेट। ओके, अब मैं इसको 4 वेरिएबल में अनपैक कर लूंगा, क्योंकि ये एक पैक्ड वैल्यू देता है, तो अनपैकिंग करनी होती है। यहाँ पे मैंने बता रखा है, दिस इज एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, no 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 no, not y train, x test, y train, y test। ये मैं बार बार इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि डीप लर्निंग जैसा मैं पहले लिख रहा था, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ऐसा वो काम करता है। ठीक है, उसके अंदर भी डेटा सेट दिए गए टेंसर फ्लो के अंदर, इसलिए मैं कंफ्यूज कर देता हूँ। ओके, सो एक्स ट्रेन इज दिस। ओके, एक्स ट्रेन हमारा ये। ठीक है, इसमें कितने सैंपल्स है? इफ आई वांट चेक, आई हैव टू सिंपली मेंशन डॉट शेप एंड इट विल गिव मी रो एंड कॉलम। सो इसमें पहला वाला पार्ट इज रो एंड द सेकंड पार्ट इज कॉलम। ओके, तो रो मींस 105 samples are there in X train, and Y train के अंदर रिमेनिंग वैल्यूज है 150 से माइनस करोगे 105, तो इट विल गिव यू लाइक 45 samples in टेस्टिंग। क्योंकि 150 में से माइनस 105 को करोगे तो टेस्टिंग में हमारा कितना 45 डेटा सैंपल्स चले जाएंगे। क्लियर है इतना? यस। और बाकी सब क्या है? बाकी सब सो रहे हैं? नहीं अच्छा, यस सर। इशिका, आर यू नहीं स्लीपिंग? तो सही में समझ में आ गया। हाँ हाँ, मुझे लगा कि यू आर स्लीपिंग। वेरी यस सर। आ गया। हाँ हाँ, चलो फिर हमारा I just want to show you Y train also. Y train is my target. जो X train है उसी का target Y train. Okay, so Y train. So this is my Y train, which is in 1D array. You can see this. Okay, 1D array because there is only one bracket. Okay, in the beginning and at the end. Okay, you can see this here also. Yeah, and है यहाँ पे। And if you want to make sure like using some method or instances को कहते हैं shape.
ठीक है. So it will give you simply the shape, the 105 samples उसके अंदर थे, because this is 1D array and that's why we have only uh, one value inside this tuple which is 105. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रो कॉलम नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे 105 सैंपल्स हमारे पास. ऑलराइट, अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी विल ट्रेन आवर मॉडल. ओके, सो हम अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे. तो हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग के पार्ट में तोड़ दिया अपने डेटा को. हमारा जो 150 सैंपल था, तो 105 सैंपल मेरे ट्रेनिंग में आ गए और टेस्टिंग में 45 सैंपल चले गए. ठीक है, नाउ आई वांट टू ट्रेन माय मॉडल यूजिंग दिस xtrain ytrain data. Okay, for that I have to again recall my algorithm, which is bagging classifier. I will simply put a bracket there because this is a class. Okay, means its implementation is given inside sklearn in the form of class. Object oriented की form में इसका implementation दिया गया है हमारे sklearn के अंदर. Alright, so I'm going to assign this class to a variable. I guess this is wrong. Model से पहले ही सही था. हाँ, तो इसको हम एक क्लास को दे देते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को दे देते हैं. ऑब्जेक्ट का नाम हमने मॉडल रखा है. ठीक है, इसके अंदर कुछ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी होती है. ओके, यहाँ पे भी एन एस्टिमेटर्स है. एन एस्टिमेटर मीन्स वीक मॉडल्स. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम इनसेम्बल लर्निंग पढ़ते हैं. इनसेम्बल लर्निंग के अंदर छोटे छोटे वीक मॉडल्स बनते हैं. कल जो हमने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था उसके अंदर डिसीजन ट्री था वीक मॉडल, और वहां पे बाय डिफॉल्ट जो वीक मॉडल्स बनते हैं वो 100 बनते हैं. और उनको जो डेटा दिया जाता है वो बूटस्ट्रैप टेक्निक की मदद से दिया जाता है. यहाँ पे भी डेटा बूटस्ट्रैप टेक्निक की मदद से ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वीक मॉडल्स है वो 10 ही बनते हैं बाय डिफॉल्ट. बट इफ यू वांना इंक्रीज द वीक मॉडल नंबर, यू कैन change this value or manipulate this value. 10 को 100 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो. It will simply take longer time. If the weak model number you will increase, in that case model will take huge time to train the model. Okay, मॉडल को ट्रेन करने में वो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जितने वीक मॉडल बनाओगे उतने बार बूट स्ट्रैप को सैंपल डेटा फॉर्म करना पड़ेगा. कॉपी पेस्ट करके फिर देना पड़ेगा सभी वीक मॉडल को, फिर सभी वीक मॉडल ट्रेन हो. सो इट विल टेक लॉन्गर टाइम. ओके, सो इट्स जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस कि तुम्हें क्या करना है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए. लेकिन जितने वीक मॉडल होंगे उतना अच्छा प्रिडिक्शन आएगा, ये भी सच है. और जितने वीक मॉडल होंगे उतना टाइम लगेगा मॉडल को ट्रेन करने. तो दोनों बातों को याद रखना. ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा ज्यादा वीक मॉडल होंगे. ज्यादा वीक मॉडल होंगे तो मॉडल ट्रेन होने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब वो ज्यादा टाइम लेने लग जाए. ठीक है, और तुम्हारा जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाएगा, है ना. फिर कल को तुम प्रेडिक्शन पूछोगे तो प्रेडिक्शन को करने में भी ज्यादा टाइम लेगा अगर तुम्हारा वीक मॉडल ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे जाके प्रोबेबिलिटी पूछ के आएगा और सबकी प्रोबेबिलिटी का मीन निकालेगा, फिर उन सभी प्रोबेबिलिटी में चेक करेगा किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये फिर बताए. इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू जनरेट प्रिडिक्टेड आउटपुट आल्सो. ठीक है, इफ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ वीक मॉडल इनसाइड दिस algorithm. Okay, bagging classifier. Okay, similarly random forest. तो इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैक्स डेप्थ. जैसे रैंडम फॉरेस्ट के अंदर डिसीजन ट्री बाय डिफॉल्ट यूज होना था, तो वहां पे लिखा हुआ मैक्स डेप्थ, गिनी स्कोर, है ना. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. मीन्स यू आर अलाउड टू सजेस्ट योर वीक मॉडल एल्गोरिथम. जो इसके अंदर छोटे छोटे वीक मॉडल बनेंगे वहां पे अब डिसीजन ट्री का आप चाहे तो इस्तेमाल करें, चाहे तो आप कोई भी वीक मॉडल, कोई भी एल्गोरिदम को यूज करके इसके अंदर जितने भी वीक मॉडल बनेंगे उनको ट्रेन कर सकते हैं. लेकिन आप सभी वीक मॉडल के लिए अलग अलग एल्गोरिदम नहीं बता सकते. एक एल्गोरिदम सबको ट्रेन करेगा. मतलब अगर मैं बैगिंग क्लासिफायर के अंदर वीक मॉडल, जैसे मान लो 10 है इसके अंदर, और 10 वीक मॉडल को मुझे ट्रेन करना है, तो मुझे कोई एक मॉडल पिक करना पड़ेगा जो क्लासिफिकेशन का काम करता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पिक कर सकता है.
तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे एन एस्टिमेटर को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। अगर तुम ये नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट ये आई गेस डिसीजन ट्री पे ही ट्रेन हो जाएगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये डिसीजन ट्री पे ही ट्रेन हो जाएगा अगर तुम नहीं कोई वीक मॉडल बताओगे तो, ठीक है, कि किससे ट्रेन करना है। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल रही है पहले से, रैंडम फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हमें फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि देखो जो सबसे पहला काम हुआ होगा किसी भी फील्ड में, एआई के भी फील्ड में, तो सबसे पहले एक छोटा सा बहुत कमजोर सा एआई बनाया लोगों ने। अभी का दौर देखो, एलेक्सा इज टॉकिंग टू यू, है ना। अभी बहुत सारे ह्यूमनॉइड्स पे लोग काम कर रहे हैं, एमआईटी राइट, और जापान की कुछ कंपनीज हैं। तो सब मिला जुला के हम उस स्टेज पर नहीं बैठे रह सकते हैं जहां से शुरुआत हुई थी, उसके आगे हमेशा डेवलप करने की कोशिश करते हैं चीजों को। उसी तरीके से जब एसकेलर्न बन रहा था तो जो जो मॉडल हम बना रहे थे उस मॉडल में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से नए मॉडल को बनाना जरूरी पड़ गया, यानी कि एल्गोरिदम्स को। और इसीलिए हमें रैंडम फॉरेस्ट के बाद मैं बैगिंग को पढ़ा रहा हूँ। मैं और आगे बढ़ूंगा तो उसी ऑर्डर में बढ़ूंगा जिस ऑर्डर में मॉडल को या एल्गोरिदम को बिल्ड किया गया, खामियों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट से बैगिंग क्लासिफायर कैसे डिफरेंट है, तो सिर्फ इसका एक आंसर, यहाँ पे आप वीक मॉडल अपना दे सकते हो, अपना एल्गोरिदम बता सकते हो कि भाई इस एल्गोरिदम से तुम वीक मॉडल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लेट्स सी। मान लो कि मैं इसके अंदर वीक मॉडल जो बनाना चाहता हूँ वो वीक मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बनाना चाहता हूँ, तो आई हैव टू कॉल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कैसे कॉल करोगे, सीधा जाके इसके अंदर मत लिख देना लॉजिस्टिक रिग्रेशन, को एरर हो जाएगा। तो तुम्हें पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन को sklearn के अंदर से बुलाना पड़ेगा, तो फ्रॉम sklearn, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो लीनियर मॉडल नाम के मॉड्यूल के अंदर है, तो उसके अंदर से आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बुलाना पड़ेगा। एंड मॉडल, I'm just going to give some different name, let's say base model. Okay. So logistic regression, of course, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एक पैरामीटर होता है, क्योंकि ये इंटरनली नंबर इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉर्म करता है। उसके लिए मल्टीपल टाइम एम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, एम एक्स प्लस सी की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो उसके लिए इटरेशंस यूज होते हैं कि कितनी बार हिट एंड ट्राई। तो यहाँ पे एक मैक्स ईटर करके होता है, इस मैक्स ईटर को हमेशा एक बड़ी वैल्यू मान लें, ठीक है, इससे कुछ होगा नहीं, फाइन मॉडल आएगा बस, ठीक है। तो मैं एक बड़ी वैल्यू 2000 मान लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये शायद 100, लेट मी चेक। तो बाय डिफॉल्ट जो मैक्स होता है ईटर वो 100 होता है, सी, है ना, 2000 मान लो। तो 2000 तक जाएगा नहीं, जहां पे भी अच्छा परफेक्ट लाइन हमें मिल जाएगा बस वहीं पे इटरेशन रोक दिया जाता है। मान लो कि 100 बार में ही मुझे अच्छा मॉडल मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से, तो इटरेशन वहीं पे बंद हो जाता, ठीक है, एरर नहीं है। लेकिन अगर उस परफेक्ट लाइन को ढूंढने में ज्यादा इटरेशन करनी पड़ी और तुमने 100 ही लिख रखा और जरूरत है 120 इटरेशन, तो एरर आ जाए। इसीलिए एक बड़ी वैल्यू मैक्स ईटर को दे के रखो, ठीक है। You can also mention this multi-class because see, your data like Iris dataset have 3 classes. और मैंने बोला था जब ज्यादा क्लासेस हो तो you guys have to consider for सर multinomial। जो हाँ आप जी। बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो ये मैक्स हाइटर में मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। जैसे हाँ। अगर मान लो हमारी 120 पे ही मिल गया हमें, तो जो हम्म। बाकी की वैल्यूज होती है वो वेस्ट होती है, क्या होती है? कुछ नहीं होती, उसके बाद इटरेशन रोक दिया जाता है, वही तो कह रहा हूँ, इटरेशन वहीं अच्छा, पे बंद कर दिया जाता है। 120 पे मिल गई ना, तो 121 तक जाएगा ही नहीं, वहीं पर रुक जाता है, ठीक है। हम बड़ी ठीक है। वैल्यू इसलिए देते हैं कि एरर ना आए, मान लो कम पड़ गया इटरेशन तो एरर आ जाए।
जो तुम्हें आ रहा था, जो तुमने स्क्रीनशॉट भेजा था, याद है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारे डेटा सेट में 3 क्लासेस हैं आयरिस डेटा सेट में, सो यू हैव टू मेंशन मल्टीनोमियल, क्योंकि मल्टीनोमियल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सॉफ्ट मैक्स यूज करता है, तो 100% प्रोबेबिलिटी होती है और एक अच्छा रिजल्ट देता है। वो कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब बार बार मैंने ओवीआर और मल्टीनोमियल के बारे में बताया है लास्ट सेशन में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, उसको देखो, पता चल जाए कि मल्टीनोमियल और ओवीआर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बस मल्टीनोमियल जो है, जब 2 से ज्यादा क्लासेस होती हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, तो मल्टीनोमियल को यूज करते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। सर टाइम खत्म हो गया। रिजॉइन करो सब फिर।